So you wake up and check LinkedIn. Someone got promoted. You open Instagram, someone is in Bali working remotely. Now you open WhatsApp, a college friend just bought a house. Meanwhile, you're sitting in your office, working, the salary is decent, and everything looks just perfect on the outside. But from the inside, you're completely exhausted. और बस तभी ये ख्याल आता है कि am I the only one broken or is just everyone else good at pretending? Hi, I'm Pranav Vashisht, an entrepreneur, storyteller, and someone who has spent years on having raw conversations unfiltered as a host on the Gut Feel Show. In the past couple of years, I have spoken to some incredible minds on the Gut Feel Show podcast. From Sonam Wangchu, Prashant Desai to Sangram Singh, from People Baba to Riri Trivedi. And one thing became very clear to me. Our generation, Indian millennials, are quietly struggling with things nobody taught us to handle. See, we are balancing career, family expectations, relationships, and identity crisis all at once without a playbook. That's why I started this channel, not to give perfect answers, but to create a space where we can finally talk openly about the things we are all feeling but rarely saying out loud. If you have ever felt lost, stuck, or misunderstood, you're not alone. Welcome to the community. I'm making this video for every Indian millennial who is quietly wondering, इतना सब कुछ अचीव करने पे भी खुशी क्यों नहीं मिल रही यार? After failing at multiple startups, building businesses, studying this for years, मैंने realize किया है we are not confused. देखो, हम पहली जनरेशन हैं जो एक broken system को boldly reject कर रहे हैं. Problem तुम में नहीं है, problem इस system में है. 73% of Indian millennials feel stuck despite career success. Depression rates हमारे एज ग्रुप में लास्ट 5 years में 40% इंक्रीज हो गए हैं. और अगर हम अब भी नहीं समझ रहे कि why we feel the way we feel, what has led us to this, तो next decade भी same loop में वेस्ट कर देंगे. Working harder, feeling emptier and blaming ourselves. हर एक्सपर्ट कहता है कि millennials are ungrateful and unrealistic. And honestly, I used to believe this until I realized these experts have no clue what we are actually going through. हम वो जनरेशन है जिसने डिग्री ली, जिसने जॉब मिली, जिसके प्रमोशन हुए, everything that we were promised would make us happy. और जब वो काम नहीं किया, instead of pretending it did, we started asking why. और ये पूछना एक्चुअली सबसे राइट रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमारी प्रीवियस जनरेशन के पास ये लग्जरी नहीं थी क्वेश्चन करने की, बिकॉज उनके पास जॉब सिक्योरिटी थी, प्रिडिक्टेबल करियर पाथ्स थे. बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम राइट क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं बट ब्लेम भी खुद को ही कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ अस आर थिंकिंग मे बी मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मे बी आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, मे बी आई शुड जस्ट बी ग्रेटफुल. This self-blame is exactly what is keeping us millennials stuck. So in the next 8 minutes, मैं 4 specific reasons बताऊंगा जो एक्सप्लेन करते हैं कि हम मिलेनियल्स ऐसे क्यों फील कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट. और अगर तुम ये पैटर्न समझ गए तो तुम्हारे पूरे पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएंगे. हमने अपने पेरेंट्स को एक ही चीज़ करते हुए देखा, सैक्रिफाइस, और उन्होंने हमें भी यही सिखाया जिंदगी का एक ही रास्ता है, स्ट्रगल करते रहो, सफलता मिल जाएगी. इसका इफेक्ट ये हुआ कि पैशन, फ्रीडम, ब्रेक्स, ये सब हमने गलत मानना शुरू कर दिया. लाइफ एक चेकलिस्ट बन गई. स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, जॉब से शादी, फिर सेटल डाउन. अब समझते हैं यहाँ प्रॉब्लम है क्या. जब कभी हमने खुद चूज ही नहीं किया तो खुद के लिए जीना कैसे सीखेंगे. और अगर हमने चूज किया भी तो सिर्फ वो ऑप्शन थे जो सबने किए थे, इंजीनियरिंग, MBA, IT जॉब, बस यही रास्ता दिखता था. अदर ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते ही नहीं थे. हम अपने दिमाग में कुछ सोचते ही नहीं थे. और इसके पीछे एक सिंपल हिडन कॉज है, द वैलिडेशन ट्रैप. आइए इसको समझते हैं. क्योंकि बचपन से ही हमने देखा सिर्फ मार्क्स, मेडल्स, गुड बॉय, गुड गर्ल पे ताली मिलती है. बड़े होते ही वो पैटर्न टाइटल, CTC, लिंक्डइन रिएक्शंस, इंस्टाग्राम लाइक्स बन गए. हमने अलाइनमेंट नहीं, अप्रूवल चेज करना सीखा है पूरी जिंदगी. इसीलिए चेकलिस्ट छोड़ना मुश्किल लगता है. हर टिक मार्क पे अंदर से एक सिग्नल आता है, तू सही कर रहा है. नाउ पॉज एंड खुद से पूछो,
अभी मैं जो कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ या सिर्फ वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ? अपने आप से पूछो, अगर किसी को पता ही ना चले क्या मैं फिर भी यही चूज करूंगा? क्लैरिटी इसी सवाल से शुरू होती है। नाउ दिस वैलिडेशन सीकिंग वुड बी मैनेजेबल अगर सिर्फ यही इशू होता, बट दिस कनेक्ट्स टू समथिंग इवन डीपर दैट्स हैपनिंग टू आवर जनरेशन, समथिंग दैट्स कंप्लीटली रीवायरिंग हाउ वी एक्सपीरियंस फुलफिलमेंट इटसेल्फ। पहले कंपैरिजन क्लासरूम तक होता था, ठीक है, अब लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब 24/7 फीड खुली रहती है। हर जगह लगता है सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई फाउंडर बन गया, सबैटिकल पे है, कोई 2 करोड़ की फंडिंग अनाउंस कर रहा है और तुम बस एक स्टेबल जॉब, अच्छी सैलरी के साथ पीछे रह गए हो। कॉलेज के बाद लगा था रेस खत्म हो गई, पर अब लगता है रेस तो अभी शुरू हुई है। पर सच तो ये है कि दुनिया तेज हो गई है, तुम स्लो नहीं हुए हो। देखो, तुम्हें वायरल होने की जरूरत नहीं है, बस जिंदा रहने के कुछ नए तरीके सीखने हैं, अपने खुद के तरीके। बट हेयर्स वेयर इट गेट्स ऑल रॉन्ग। इंटरनेट ने सिर्फ कंपैरिजन की स्पीड नहीं बदली, कंपैरिजन को ही आइडेंटिटी बना दिया। अब हम खुद को अपने काम से नहीं, दूसरों की हाईलाइट रील से नापते हैं। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है और इसी ने हमारी फुलफिलमेंट की डेफिनेशन बदल दी है। और ये शिफ्ट सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है, बाय द वे। दिस कनेक्ट्स डायरेक्टली टू हाउ वी सी आवरसेल्व्स एट वर्क, हाउ वी मेजर सक्सेस, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इशू। हम मिलेनियल्स मेहनती हमेशा से थे, लेकिन सही डायरेक्शन कभी मिली ही नहीं। बहुत कुछ पा लिया, पर कितना चाहिए कभी क्लियर ही नहीं हुआ। वर्क हार्ड करते करते हमने अपनी वैल्यू को काम से ही एसोसिएट कर लिया, और अब रेस्ट लेना भी बिना गिल्ट के मुश्किल लगता है। नाउ पॉज एंड ट्राई दिस। टेक अ पेन एंड पेपर एंड लिस्ट डाउन 3 थिंग्स जो तुम बिना किसी आउटकम के भी एंजॉय कर सकते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी यहीं से शेप होती है। Now this identity shift actually can help solve a lot of problems. But इसमें एक crucial problem है। चाहे तुम्हें ये पता भी चल जाए कि तुम असली में कौन हो, क्या चाहते हो, फिर भी तुम्हें उस सिस्टम में ऑपरेट करना पड़ता है जो एक entirely different जनरेशन के लिए बनाया गया था। और यही डिस्कनेक्ट हमें लगातार मिसअंडरस्टूड फील करवाता है, which brings me to my last point. हमें स्कूल में सिखाया गया है सुनना सीखो, ऑफिस में बोलते हैं बोलना सीखो, पर हम बीच का ब्रिज तो मिस ही कर गए। किसी ने ये ट्रांजिशन करना तो सिखाया ही नहीं। मीटिंग में बोलने से पहले बार बार सोचना पड़ता है कहीं गलत ना हो जाए। कोई सिखाता ही नहीं कि कैसे इनिशिएटिव लें, कैसे फीडबैक दें, कैसे अपनी बातें रखें। 20 साल हमने सीखा क्वेश्चन मत करो, द टीचर इज ऑलवेज राइट। फिर सडनली ऑफिस में एक्सपेक्ट करते हैं क्रिएटिव बनो, लीड करो, सोल्यूशन लाओ। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हम वो जनरेशन है जो बीच में फंसे हुए हैं, द सैंडविच जनरेशन। स्कूल ने हमें फॉलोअर बनाया, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड नाउ वांट्स लीडर्स। नोबडी प्रिपेयर्स अस फॉर दिस ट्रांजिशन, ना घर में सिखाया ना कॉलेज में। नाउ इफ यू वांट टू डू समथिंग अबाउट दिस इशू, पॉज एंड ट्राई दिस। द नेक्स्ट टाइम यू आर इन अ मीटिंग, ट्राई टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 आइडिया, चाहे वो हाफ बेक्ड ही हो। See, even if it is messy and gets rejected, it does not matter, क्योंकि progress confidence से नहीं practice से आती है। तो ये थे वो 4 reasons जो explain करते हैं कि हम millennials क्यों feel कर रहे हैं everything wrong despite doing everything right। अब real question ये है, what are you going to do about it? As a millennial who is trying to do things differently, मैं हमेशा से सोचता हूँ, is it actually confusing or do I finally have the courage to not follow society definitions of a good life? If you are in for a messy real life conversation with me, don't forget to subscribe. This channel is not for finding advice or philosophy, but to embrace being the confused one, slow one, the figuring things out type person. क्योंकि the world needs people brave enough to build something better, not just to cope with existing broken systems. See you in the next video.